السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں ایک ایسے شہر کی سیر پر جو 3 عظیم سلطنتوں کا دارالحکومت رہا، جس میں رومی، بازنطینی اور عثمانی شامل۔ ایک ایسا شہر جہاں پر ہر پتھر، ہر دیوار اور ہر گلی تاریخ سناتی ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں استنبول کی۔ چلو چلتے ہیں، وقت کے پردے ہٹاتے ہیں اور تاریخ کی آنکھ سے اس شہر کو دیکھتے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کو لے کے چلتا ہوں بلو ماسک، جس کا اصل نام سلطان احمد مسجد ہے، لیکن یہ بلو ماسک کے نام سے دنیا میں جانی جاتی ہے۔ سلطان احمد نے 1609 میں اسے بنوانا شروع کیا تھا اور 1616 میں یہ مکمل ہوئی۔ یہ عثمانی سلطنت کا شاندار اسلامی فن تعمیر کا نمونہ ہے۔ اس کا نام بلو ماسک اس لیے پڑا کیونکہ اس کے اندرونی حصے میں تقریباً 20,000 نیلے کلر کی ٹائلز استعمال کیے گئے۔ جب آپ اس کے نیلے گنبد کو دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آسمان بالکل آپ کے سر پر۔ اس مسجد کے 6 مینار ہیں، کیونکہ مسجد الحرام میں بھی 6 مینار ہیں، تو پھر مکہ میں 7واں مینار بنایا گیا تاکہ مکہ کی انفرادیت برقرار رہے۔ یہ مسجد آج بھی نمازیوں کے لیے ہر وقت کھلی رہتی ہے۔ یہاں لاکھوں سیاح روزانہ آتے ہیں، بشرطے کہ وہ مسجد کے تقدس کو مد نظر رکھیں۔ اب میں آپ کو لیے چلتا ہوں اس شہر کی دوسری بڑی عمارت کی طرف، جسے آیا صوفیہ کہتے ہیں۔ یہ عمارت 537 عیسوی میں بازنطینی بادشاہ نے بنوائی تھی اور تقریباً 1000 سال تک یہ دنیا کا سب سے بڑا چرچ رہی۔ 1453 میں جب سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا تو اسے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہاں ایک طرف عیسائی اور دوسری طرف اسلامی تاریخ جھلکتی ہے، جو اسے ایک نایاب جگہ بناتی ہے۔ 1935 میں مصطفیٰ کمال اتاتürk ترک نے اسے میوزیم میں بدل دیا اور پھر 2020 میں ترکی حکومت نے دوبارہ اس کو مسجد کا درجہ دے دیا۔ یہ مقام آج بھی مذہبی ہم آہنگی کی ایک عظیم مثال ہے۔ دوستو، میں آپ کو لیے چلتا ہوں ایک ایسی عمارت کی طرف جو کہ عثمانی خلافت کے بادشاہوں کی رہائش گاہ رہی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ٹوپیکا پیلیس کی، جس کو 1460 میں سلطان محمد فاتح نے بنوایا تھا اور یہ 400 سال تک عثمانی خلفاء کی رہائش رہی ہے۔ یہاں آپ کو نظر آئیں گے وہ دربار جہاں سے عثمانی سلطنت کے اہم فیصلے کیے جاتے ہیں، اور سب سے مقدس جگہ اس عمارت میں، جس کو حجرہ مبارک کہتے ہیں، جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار مبارک، نالین مبارک، ریش مبارک، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرتا مبارک اور خلفائے راشدین کی تلواریں اس جگہ محفوظ ہیں۔ یہ محل صرف ایک سیاحتی مقام نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کی تاریخ کا زندہ ثبوت ہے۔ اس چھوٹی سی ویڈیو میں
इसका अहाता करना नामुमकिन है। खैर, अब हम आगे चलते हैं एक ऐसे पुल की तरफ जो एशिया और यूरोप दोनों को आपस में मिलाता है, जिसे बासफोरस ब्रिज कहते हैं। इस्तांबुल की जुग्राफियाई अहमियत की सबसे बड़ी मिसाल है। ये पुल 1973 में बनाया गया ताकि एशिया और यूरोप को जोड़ा जाए। दुनिया के चंद शहरों में से एक है जहां आपको एक ही दिन में 2 बड़े आज़मों पर कदम रख सकते हैं। यहां से गुजरते हुए आपको शहर का हुस्न, कुदरत का कमाल दोनों एक साथ महसूस होते हैं। ये पुल तिजारत, ट्रांसपोर्ट और अब सियाहत की एक अलामत बन चुका है। दोस्तों, जब कभी भी आप इस्तांबुल जाएं, मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि बासफोरस ब्रिज विजिट जरूर कीजिएगा। इस ब्रिज में बहुत सारी कश्तियां, क्रूज चलते हैं जो आपको शहर के दोनों अतराफ की सैर करवाते हैं, जहां से आपको अंदाजा हो जाता है इस शहर की अहमियत का भी और इस शहर की कुदरती हुस्न का भी। दोस्तों, अब मैं आपको लिए चलता हूं गलाटा टावर। गलाटा टावर असल में 1348 में बनाया गया था और उस वक्त इस टावर को टावर ऑफ क्राइस्ट कहा जाता है। ये टावर पहले फौजी मकसद के लिए बनाया गया था ताकि शहर पर नजर रखी जा सके। यहाँ पर आपको एक दिलचस्प वाकया भी बताता चलूं। एक अहमद नामी तुर्क स्कॉलर ने 17वीं सदी में यहाँ से पर लगाकर उड़ने की कोशिश की और वो कामयाब भी रहा। बासफोरस ब्रिज पार करके एशियाई हिस्से तक पहुंच गया था। यहाँ से आपको पूरे इस्तांबुल का शानदार नजारा होता है, मसाजिद, समंदर, पुल, सब कुछ। दोस्तों, अगर इस्तांबुल की बात हो और ग्रैंड बाजार का जिक्र ना हो तो इस सफर का मजा अधूरा रह जाएगा। अब हम बात करते हैं उस बाजार की जिसकी बुनियाद 1461 में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने रखी थी। इस बाजार का शुमार दुनिया के कदीम और बड़े बाजारों में से होता है। इसमें तकरीबन 4000 दुकानें हैं और ये बाजार सिर्फ खरीदारी ही नहीं बल्कि तुर्क सकाफत का भी मजहर है। यहाँ जेवरात, कालीन, मसाले, चाय, चमकदार लैंप्स और हाथ से बने हुए नवादरात मिलते हैं। इस बाजार में हर दुकान अपनी ही कहानी रखती है, हर चीज के पीछे जैसे कि तारीख छुपी हुई है। दोस्तों, आप जब कभी भी इस्तांबुल आए तो ग्रैंड बाजार का विजिट जरूर कीजिएगा और यहाँ पर खरीदारी करते हुए भाव ताव करना ना भूलिएगा, जो कि इस शहर की सकाफत भी है। दोस्तों, अब मैं आपको लिए चलता हूं बहुत ही एक अहम मकाम की तरफ जहां पर अल्फाज खत्म हो जाते हैं। मेरा मतलब है हजरत अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मज़ार अक़दस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंसारी सहाबी थे और आपकी मेजबानी का शरफ हासिल किया। जब पहली बार मुसलमानों ने कुस्तुनतुनिया का मुहासरा किया 674 ईस्वी से 678 ईस्वी तक, तो आप भी उसमें शरीक थे। इसी दौरान आप शहीद हो गए और आपकी वसीयत के मुताबिक आपको शहर के दीवारों के करीब दफन किया गया। उस्मानी सुल्तान मोहम्मद फातेह ने जब कुस्तुनतुनिया फतह किया तो इस मजार को शानदार मस्जिद में दोबारा तमीर करवाया। यहां पर आकर आपको एक बड़ा पुरसकून एहसास होता है। यहां पर आकर दिल झुक जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको लिए चलता हूं एक जदीद
मगर बहुत ही शानदार मुकाम की तरफ, जिसको एक्वाफ्लोरिया कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक्वेरियम है जिसमें 1500 से ज्यादा इकसाम की मछलियां और समुद्री हयात रखी गई है। यहाँ आपको शार्क, रे, ऑक्टोपस और रंग बिरंगी मछलियां एक सुरंग जैसे रास्ते में तैरती हुई नजर आएंगी। ये जगह बच्चों, फैमिलीज और नेचर वालों के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। और इस एक्वेरियम के साथ ही खूबसूरत सी व्यू मॉल है, कैफे और साथ समुद्र की ठंडी हवा। यहाँ बैठकर खाना खाने और चाय पीने का लुत्फ ही दोबाला हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस्तांबुल शहर की सैर पसंद आई होगी। यहाँ दरिया आपसे बात करती है, गलियां सबक देती हैं और समंदर आपको खामोशी से संभाल लेता। ये शहर वो है जो पहले कुस्तुनतुनिया था, फिर इस्लाम के माथे का झूमर बना। अगर आपने अभी तक इस्तांबुल को नहीं देखा तो यकीन करें आपने दुनिया का एक बहुत बड़ा खजाना नहीं देखा। आपसे दरख्वास्त है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगली ही ऐसी किसी नायाब वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।